बहुत टाइम के बाद मैंने एक ऐसा शो देखा है, लाइक द मोमेंट आई फिनिश वॉचिंग इट आई वाज लाइक आई हैव टू recommend it on the channel, and today I want to talk about that show. Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. Before we get into the recommendation for the day, I quickly want to tell you about the workshop that is happening this Sunday by Vani. Vani is doing a workshop on letter writing. So it's a workshop with limited seats, 50 seats. उनमें से I think only 19 seats are left now. You should definitely sign up for that. उसका link हमने description में डाला है. And it's going to be different from my networking course क्योंकि this time everything will be live on Zoom. So वानी के साथ आप live interact कर सकते हैं and उसमें एक live letter writing session भी होगा. So you should definitely check this out. The link is in description. Coming to the recommendation for the day, I want to recommend a show called Normal People. ये एक Hulu का show है and it's a show which is based on a novel by the same name which is written by Sally Rooney. एंड मेरे को कुछ नहीं पता था कि किस बुक से अडेप्टेड है. मेरे को इसका ट्रेलर नहीं देखा था, कुछ नहीं पता था. आई जंप्ड डायरेक्टली इनटू द शो. बाय द वे, लाइक सिंस आई वांट टू टॉक सो डेस्परेटली एंड पैशनेटली अबाउट दिस शो, देयर माइट बी माइल्ड स्पॉयलर्स अहेड, सो जस्ट अ वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर. So Normal People is the story of these two people, Cornell and Marianne, who are kind of in love with each other when the show starts. They are in school, और एक हाई स्कूल रोमांस के जैसे चालू होता है, where these two people are infatuated to each other and they are keeping it a secret. And the guy Cornell is like this macho man, like who is like very good looking and who is good at sports, good in studies. हर चीज में he is great, and the girl is also very smart. And everyone likes Cornell in the school, and like Marianne is not that much liked in the school क्योंकि वो काफ़ी ऐसे मुंहफट होती हैं, in the sense कुछ भी होता है तो she would argue with the teacher or whatever. But these two people develop a chemistry and they start talking to each other and they like end up like sleeping together. और उसके बाद से चीज़ें कैसे change होती हैं, we get to see over the next 12 episodes. One of the strongest strengths of this show is the simplicity. हर टाइम ऐसा कुछ हो रहा था जो मेरे को लग रहा था कि अब कुछ ग्रैंड होगा. This is this thing I also experienced while watching Richard Linklater movie for the first time, कि ग्रैंड कब होगा, दोनों में से एक साइको किलर कौन निकलेगा, मर्डर कब होगा. इट्स लाइक द वे वी हैव बीन, लाइक जो एटलीस्ट मैंने जैसा कंटेंट देखा था, कभी कभी आता है कि इतना सिंपल, लाइक सीरियसली नथिंग इज हैपनिंग. इट्स डिफरेंट फ्रॉम द बिफोर ट्रिलॉजी इन अ वे. बिफोर ट्रिलॉजी इज वेरी टॉकी. यहाँ पे बातें भी इतनी नहीं हो रही है, ऑकवर्डनेस को स्क्रीन से हटाया नहीं जा रहा. दीज टू पीपल आर सो इंट्रोवर्टेड एंड दे स्ट्रगल टू टॉक विद वर्ड्स. सो हम उनकी ऑकवर्डनेस उनकी एक लैंग्वेज बन जाती है इस शो में, एंड वी आर गेटिंग टू एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट हैंड. Like the guy also has some issues and the girl also has some issues, and they are struggling with that awkwardness throughout the show. And there are moments when these people ask each other those stupid questions जो मैंने I think life में पूछे होंगे, या the people that you are involved with might have asked to you or you might have asked to them, like where you might get insecure, where you might ask those questions कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये हुआ, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, फिर उसी का थ्रेड कंटिन्यू हो जा रहा है, एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन. इट गेट्स बोरिंग टू वॉच, बट द क्रिएटर्स डोंट शाई अवे फ्रॉम शोइंग दैट क्वेश्चंस वेयर वी गेट टू सी देयर इनसिक्योरिटीज, स्पेशली जब वो स्कूल वाले फेज में होते हैं, वेयर वी गेट टू सी देयर इनसिक्योरिटीज लाइक टोटली आउट देयर. एंड अगेन दिस इज वन ऑफ दोज फर्स्ट शो स्लैश मूवीज जो मैंने देखी हैं जहाँ पे वी गेट टू सी द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज. तो आप स्कूल में हो तो कैसे होते हो, कॉलेज में हो तो कैसे होते हो, और सारी आपकी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है, वो हमें मैरियान एंड कॉर्नेल की लाइफ में देखने को मिलती है. वाइल द मोमेंट आई फिनिश वॉचिंग इट, मैं रेडिट पे भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, एंड आई ऑल्सो लुक फॉर लाइक व्हाट अदर पीपल हैव रिटन अबाउट इट, बिकॉज आई वाज लाइक होली शिट, दिस इज सो गुड. एंड आई ऑल्सो केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल essay और लाइक आर्टिकल रिटन बाय राहुल देसाई, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है फर्स्ट पोस्ट पे अबाउट दिस शो. एंड ही हैज़ रिटन दिस ब्यूटिफुल थिंग विच आई ऑल्सो अग्री विद, कि उन्होंने ओवर अ फ्यू डेज और वीक्स देखा था. सो वाइल ही वॉज वॉचिंग दिस शो, जब भी वो किसी से मिलते थे या खाना खा रहे होते थे या कुछ काम भी कर रहे होते थे, इसकी इमेजरी दिमाग से नहीं निकल रही थी. He kept thinking about the characters, and this show has that effect on you. You will not be able to stop thinking about these two people. This show also made me consider a lot of things school से जो हमें सिखाई जाती हैं, और जैसे हमारी पेरेंटिंग होती है और उसका जो रेजिड्यू होता है, लाइक इवन आफ्टर वी ग्रो अप, वो कैसे कभी हमारे साथ रह जाता है. इफ देयर आर बैड थिंग्स दैट हैपन टू अस व्हाइल वी वर इन स्कूल और इन रिगार्ड टू द वे वी वर पेरेंटेड, या अगर हमारा कोई ऐसा
फैमिली में कोई ऐसा हो जिसकी वजह से लाइक इफ देयर इज एनी ट्रॉमा, तो वो चीज़ें इनकी रिलेशनशिप में कैसे हैं। अगेन ये बहुत सारे शोज और मूवीज में दिखाया जाता है, हाउ योर चाइल्डहुड अफेक्ट्स यू इन फ्यूचर। अगेन इसमें इतनी ज़्यादा साइलेंसेस है, इतने कम शब्द है ना, तो आपको सोचना पड़ता है, वो खुद आपके दिमाग में थॉट आएगा। एंड बहुत इनिशियली ये एस्टैब्लिश करा दिया जाता है कि मैरियान इज फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली एंड कॉर्नेल इज नॉट फ्रॉम सच अ फैमिली। इनफैक्ट कॉर्नेल की मॉम मैरियान के घर पे काम करती हैं, तो वहां पे भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक आ जाता है। ये चीजें ना बाद में लगता है कि यार 2 साल बाद 3 साल बाद आप मे बी लाइक उनको रियलाइज हो रहा है कि ओके देयर वाज दिस थिंग जिस वजह से काफी सारी चीजें अफेक्ट हुए। एंड अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट द शो इज कि होता क्या है रिलेशनशिप्स में। एंड लाइक आई विल रीड आउट द एग्जैक्ट लाइन दैट राहुल देसाई हैड रिटन इन हिज आर्टिकल कि most couples part only to end up with different partners. However, the parting of normal people allows the couple to consider different versions of themselves with the same partner, because there are so many times they are on and off and on and off, so they get to rediscover each other always in the new ways. और जब भी ये ways like every time they are parting ways, इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ एनजाइटी, और लाइक कि कोई कुछ बोल नहीं पाया, वो कॉन्शियस हो गए, सो दे सेल्फ सैबोटाज। और लाइक आई हैव टू टेल यू गाइज, आई हैव नेवर सीन दिस एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ एनजाइटी इन अ शो इन माई लाइफ। इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने इतने सारे स्नैपशॉट्स लिए, वी विल ट्राई टू लाइक पोस्ट देम इन द वीडियो एज वेल, where like Marianne like takes a break, डिनर चल रहा है but it gets too intense, और लंच चल रहा है, so वो रूम में जाती है and she is like standing in front of the wall and she's just trying to breathe and breathe and breathe. Same happens with Connells और ज़्यादा secretive इंसान है, वो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ें बोलना. So how these two people like try to deal with those things. और मैं ऐसे बीच में शो में इनके अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में भी सोच रहा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत एविडेंट है कि आई नो उनके कौन से अटैचमेंट स्टाइल्स हैं. आप भी बताना कि आपको क्या लगता है कि लाइक व्हाट देयर अटैचमेंट स्टाइल्स आर, बिकॉज लाइक नोइंग दीज थिंग्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दीज पीपल बेटर. एंड being these imperfect beings, they are still trying to be with each others. महीने लग रहे हैं, साल लग रहे हैं, they are trying and their love is so beautiful. Like all the intimate scenes which are shown in the show, like every time they are having sex, तो उसको एक नए तरीके से दिखाते हैं. Like there is so much beauty in it, like they are discovering each other for the first time. Because जब भी वो एक दूसरे के साथ वेज पार्ट करते हैं, अगेन दिस नॉवेल्टी फैक्टर कम्स. एंड वो कभी भी इसलिए पार्ट नहीं करते लाइक वेज क्योंकि यार कि भाई बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई. इट्स जस्ट दैट उस मोमेंट पे वो कुछ बोल नहीं पाए या कुछ कर नहीं पाए, एंड द अदर पर्सन थिंक्स कि यार मे बी आई एम नॉट गुड इनफ. ये इतना होता है शो में. एंड कभी भी मेरे को ये नहीं लगा ब्रो अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लाइफ में भी मेरे को तो ऐसा लगता है हर जने की लाइफ में एक या दो ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ऑन एंड ऑफ लाइक you keep like coming back together or like letting go of them. And it's just that कि आप जितना भी आप कोशिश कर लो उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाने का, they just somehow find a way to come back to your life, and you might not hate it also. It's just that they are omnipresent, they are always there. It's just कि होता है. That is why I related so much to normal people, and that is why I think आप भी normal people से बहुत relate करेंगे, because it's as real as it gets. जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे को लगा था बहुत बॉलीवुडिश हो रहा है कि लड़का लड़की को लाइक करते हैं, लाइक दे एंड अप टुगेदर, और काइंड ऑफ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है शो में. बट लाइक the message is in the statements when they are not making love, or when they are not like able to talk to each other. It's the message is always in the awkwardness. And when they are writing emails to each other, they so want to be with each other, but childhood trauma is there, like their own like insecurities of their status. तो वाले जैसे भी dynamics हैं, जब भी वो play करते हैं, कभी भी they won't be spelled out for you. वो आपको बस समझ आ जाएगा और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. अगर आप ढंग से इन्वेस्टेड होकर ये शो देखोगे, जो मेरे को लगता है बहुत ईजी है. कभी कभी होता है ना कि कोशिश लगेगी फ़ोन साइड में रखना, इसमें कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी. इट इज़ अ शो दैट बहुत नेचुरली आप देख पाओगे. इट विल लाइक शैटर यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड आई एम डाइंग टू सी इफ दे कम अप विद अ सीजन 2, क्योंकि सीजन 1 भी ऐसे ख़त्म होता है कि स्टोरी वहाँ भी ख़त्म हो सकती है. बट I would love to see another season, man. And this show also made me think of this interesting thought ki, are we even capable of loving each other anymore?
कि यार चलो मुझे एक लड़की पसंद है, लड़की को मैं पसंद हूँ, एंड लाइक वी आर गुड टुगेदर, बट व्हाट इफ वी आर नॉट इवन केपेबल ऑफ लविंग ईच अदर एनी मोर? व्हाट इफ आवर इमोशनल इंटेलिजेंस इज सो फक्ड अप? व्हाट इफ वी हैव सो मच एंजाइटी कि बस हमें यही डर लगता रहता है सामने वाले को कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि उसको कुछ लग जाएगा। इट्स लाइक कि कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हम, तो मे बी हम पूरे टाइम इस सेल्फ डाउट के साथ ही रहेंगे कि नहीं यार ये हो ही नहीं पाएगा, इवन इफ वी वांट द अदर पर्सन सो मच। सो दिस रियली मेड मी थिंक कि यार ये कितना ब्यूटीफुल थॉट है कि लाइक आपको इसमें सब कुछ पता है दैट यू आर इनटू हर, लाइक शी इज इनटू यू, बट स्टिल इट माइट नॉट वर्क आउट, और मे बी इट विल, बट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस ऑल दोज years to know that just with a single person this is what normal people is about? Because ये सबकी लाइफ में होता है, and I love the title of the show, Normal People. So do check this show out. I really loved it and I think you will also love this show. और मैंने बात की तो मैं और इमोशनल हो जाऊंगा, but yeah guys, I would love to talk to you more about this show, so check it out. And this was my recommendation for the week. बहुत टाइम बाद मैंने एक मूवी recommendation, टीवी शो recommendation episode बनाया. Do let me know if you would want to see more of these. And you should become our patron if you like our work. Subscribe to our channel. If you become a Godfather, you will get access to a lot of things. हमारे last movie quiz में 2 Godfathers आए थे, and अभी पथिक के साथ एक और Godfather ने participate किया था. So we give a lot of access to our Godfathers, to our WhatsApp groups, to come on Zooms. So you should definitely check out the perks which come with becoming a Godfather. And वानी का कोर्स आ रहा है इस संडे. ओनली 18 or 19 seats are left. Definitely sign up for this. It's going to be worth it. And I am also going to be there. Vani is going to be there. And a lot of people who are interested in letter writing are going to be there. So check out the course also. So yeah, this was all for the week. I'll see you guys with another recommendation very soon. Bye.